Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are doing great. Let's start with post-modern period art and architecture. As you know, I have divided Indian architecture into three periods: ancient India, medieval India and modern India. I have already covered the Harappan art and the modern art. If you have not seen those videos, go and see those videos. Those videos will be very helpful for your examination. Today in this video, I am going to cover the post-modern period art and architecture. The post-modern period starts from 185 BC to 319 AD. And in this period, foreign invasions took place. Greek, Shak, Parthian, Kushan, they attacked India. They invaded India. The question arises, why they attacked India in the post-modern period? Why not in the modern period? Let's understand this by an example. Let's say this is your house and your house is surrounded by slum area. And you are very rich. You have Mercedes, Audi, gold, jewelry, everything. And your house is surrounded by slum area people. Now, whenever your authority in your house becomes weak, you become weak, these slum area people will jump into your house and they will snatch away your Audi, your Mercedes, they will take away your wealth. In the same manner, this is what happened with India. Understand this. In the 6th century BC, second urbanization starts. And this second urbanization was at peak in the post-modern period. Now trade was flourishing, people were rich in the post-modern period. But the central authority was weak. Mauryan Empire was collapsed. And this was the chance for the foreign players to invade. Now India is surrounded by slum area people like Afghanistan at that time. They don't have resource. They are poor people. And India was flourishing. Trade was flourishing. India's people were rich. And there was no central authority to control that. As polity is the guardian of economy. Understand this. Polity is guardian of economy. If polity is there, अब economy तो बहुत strong है, पर polity नहीं है. Mauryan Empire collapse हो रहा है. Polity strong नहीं है, तो what will happen? These foreign players will invade India. That's why these foreign players, Greek, Shak, Parthian, Kushan, they attacked India in the post-modern period because Mauryan authority was not that strong to sustain its boundary. Understand? Okay. Now, when any foreign players will invade India, they will also impact our art and architecture. So, in this background, let's understand post-modern period art and architecture. So, I have divided post-modern period into architecture and sculptures. Understand this, sculpture reached its climax in the post-modern period. तो स्कल्पचर जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे, जैसे कि स्तूपा पहुंच गया था मॉडर्न पीरियड पे. ठीक है. आर्किटेक्चर को आई हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू केव्स एंड स्तूपास, एंड आई हैव ऑलरेडी डिवाइडेड केव्स इनटू टू, रॉक कट केव्स एंड उदयगिरी खांडागिरी केव्स इन ओडिशा. रॉक कट केव्स, लेट्स अंडरस्टैंड रॉक कट केव्स. तो ये केव्स का मतलब गुफा है. दो तरह की गुफाएं हैं. कौन कौन सी? चैत्यास एंड विहारास. तो मैंने आपको पहले बताया था विहारास आर द रेजिडेंस फॉर द जैना एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क, and they were already developed in the modern period. But in the post-modern period, chaityas were also developed. Chaityas were the prayer halls where the monks do the prayer thing, and this was developed in the post-modern period. And in the post-modern period, both chaityas and viharas were both decorated with human and animal figures. तो human और animal figures से दोनों decorate होते थे. Example के तौर पे आप लीजिए करले चैत्य हॉल्स ऑफ महाराष्ट्र. इमेज के माध्यम से हम हर चीज याद रखेंगे, तो इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो करले चैत्य हॉल्स ऑफ महाराष्ट्र, तो ये प्रेयर हॉल है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ प्रेयर हॉल. और यहाँ पे देखिए एनिमल फिगर से इनको सजाया गया है, तो ह्यूमन एंड एनिमल फिगर होंगे, तो ये आप देख सकते हैं. ठीक है. दूसरा एग्जांपल है अजंता केव्स. तो अजंता केव्स को कौन नहीं जानता है? 29 केव्स वर देयर, 25 वर फॉर विहारास एंड 4 वर फॉर चैत्यास. तो जाहिर सी बात है रहने के लिए ज्यादा केव्स थी और पूजा करने के लिए 4 केव्स थी. ये एग्जाम्पल मैंने फोटो इसलिए लगाई है ताकि आप एग्जाम्पल लीजिए गुफा होती कैसी थी, तो इसको फील लीजिए. केव्स ऐसे बनती थी. ठीक है. वेरी ब्यूटीफुल केव्स, अजंता केव्स. नाउ केव नंबर 19 की बात करें तो 5th सेंचुरी चैत्य हॉल. तो इस तरह का कुछ देखता था. आप ह्यूमन फिगर्स देख सकते हैं यहाँ पर. ह्यूमन एंड एनिमल्स फिगर्स वर देयर इन दिस टाइप ऑफ विहारास एंड चैत्यास इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. अजंता केव्स देखिए आप, बहुत खूबसूरत है. क्या पहाड़े हैं, क्या ग्रीनरी है, और यहाँ पर क्या केव्स बनी है. तो आप ये देख सकते हैं, देख पा रहे हैं केव्स, और यहाँ पे एक नदी गई है और बगल में केव्स है. 25 केव्स फॉर विहारास एंड 4 फॉर 25 फॉर विहारास एंड 4 फॉर चैत्यास. And this is
द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अजंता केव्स। तो यहाँ पे वोगरा रिवर जा रही है और 1 2 3 4 करके ये केव्स हैं, ये सब ब्रिजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लगा दिया ताकि आप याद रखें। मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, जब आप कोई चीज़ देखते हैं तब आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, ज़्यादा समय तक आपका रिटेंशन होता है। दैट्स वाई आई एम पुटिंग दीज इमेजेस इन फ्रंट ऑफ यू। Now let's talk about Udaygiri and Khandagiri caves in Odisha. They were made under the cunning king Kharvela. तो इसके समय पर बनाई गई थी and they were developed during the 1st and 2nd century BC. The place was Bhubaneswar, residence for Jaina monks. They were used as a residence for Jaina monks. There were 18 caves in Udaygiri and 15 caves in Khandagiri. Example के तौर पे लीजिए आप हाथी गुम्फा cave of Udaygiri. This is the entrance of हाथी गुम्फा cave of Udaygiri. दिस इज वेरी पॉपुलर हाथी गुम्फा केव एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो देखिए कैसे पत्थरों पे इंस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है। दिस इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। सेकंड एग्जांपल इज रानी गुम्फा केव इन उदयगिरी। दिस वाज डबल स्टोरी केव। तो डबल स्टोरी देख रहे हैं यहाँ पर, ये डबल स्टोरी, तो मैंने इमेज इसीलिए लगाई, आप देखिए इसको मेमोराइज कीजिए। दिस वाज द डबल स्टोरी केव। तो ये भी एविडेंस है कि डबल स्टोरी केव्स भी होती थी। दैट एग्जांपल इज रानी गुम्फा केव इन द उदयगिरी। और कितना बढ़िया इसको कार्व्ड किया गया है, कितनी अच्छी यहाँ पर लगाई गई। तो इसको इमेज के तौर पे याद रखिए। दैट्स व्हाई आई पुट दिस, सी द ब्यूटी। ओके, लेट्स मूव टू द स्तूपास। नाउ एज यू नो द स्तूपा रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स इन द modern period. Now in the postmodern period, the stupas become large and more decorative in this period, and stone is used in the place of woods and bricks. तो stone use करते थे आप woods and bricks के place पर। और सुंगा डायनेस्टी, तो ग्रीक, शक, पर्थियन, कुषाण, they attacked India, they were the foreigners, and इंडिया में कौन थे? सुंगा एंड कनवा in place of मौर्यन empire, ठीक है। तो मौर्यन के बाद जो आए सक्सेसर थे सुंगा एंड कनवा, जो कि हमारे देश के थे। बाहर से जो इन्वेट किए थे वो थे ग्रीक, शक, पर्थियन, कुषाण। दिस इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री। We are talking about the art and culture. तो सुंगा डायनेस्टी ने क्या किया? इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरण एज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेटवेज टू द स्तूपा। तो उसने कहा कि तोरन्स को, जो तोरन्स मतलब गेटवेज को, लेट्स मेक इट मोर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। जैसे कि एग्जांपल पे उन्होंने दिया भारत स्तूपा और ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए कितना बढ़िया इसको सजाया गया है। तो तोरन्स को, ये तोरण मतलब गेट होते थे, स्तूपा के गेट, मैंने आपको पूरा पढ़ाया वो चीज। एंड देयर वर आल्सो द एविडेंस ऑफ हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, द ग्रीक आर्ट इन्फ्लुएंस इन दैट पीरियड। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड सॉ द ग्रीक आर्ट इन्फ्लुएंस ऑल्सो। यू नो व्हाई? बिकॉज द फॉरेन इन्वेजन्स टुक प्लेस एंड ग्रीक वर द फर्स्ट वन टू अटैक इंडिया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज सांची तोरण इन द एमपी। सी द ब्यूटी ऑफ सांची तोरण, मोस्ट डेकोरेटेड, ठीक है। दिस इज द वेरी पॉपुलर सांची स्तूपा इन द मॉडर्न टाइम ऑल्सो। Now this is all about architecture, caves and stupa. Let's move to the sculptures. In the postmodern period, sculptures reached its climax. Three schools developed: Gandhar School of Art, Mathura School of Art, and Amravati School of Art. Now, what are the area of development of these schools? Let's see that. This is the area of development. Here, the Gandhar School developed in the northwest frontier. Mathura schools developed here, and Amravati schools developed here. Now, foreign invasions took from the northwest frontier. अगर इम्पैक्ट देखा जाए, फॉरेन कल्चर का इम्पैक्ट किस पर ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है गांधार आर्ट पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा फॉरेन इन्वेजन का। लेट्स टॉक अबाउट गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट साइमल्टेनियसली। तो ज्यादा समझ में आएगा, तीनों को कंपैरेटिवली वे में हम देखेंगे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करें तो किसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा? फॉरेन इन्वेजन का। फॉरेन इन्वेजन कहाँ से हुए थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हुए थे। तो जाहिर सी बात है गांधार आर्ट जो होगा दैट विल बी हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेनर्स। तो गांधार आर्ट वाज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक sculptures, and that's why it is also sometimes known as Indo-Greek art, while as Mathura and Amravati were indigenously developed and they were not much influenced by the external culture. अगर ingredients की बात करें तो अर्ली गांधार स्कूल ने यूज किया था ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का, while जो लेटर पीरियड के जो गांधार आर्ट बने उन्होंने यूज किया था मड एंड स्टको का, while मथुरा आर्ट है यूज्ड स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन एंड अमरावती स्कूल यूज्ड व्हाइट मार्बल्स। रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें तो देर बुद्धिस्ट एंड बुद्धिस्ट, तो अमरावती स्कूल एंड गांधार स्कूल दे वर मेनली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन मथुरा स्कूल हैव डेवलप्ड ऑल द थ्री रिलीजन्स, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द थ्री रिलीजन, हिंदुज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। पैट्रोनिस की बात करें तो कौन कौन से जो फॉरेन प्लेयर्स जिन्होंने अटैक किया? ग्रीक, शक, पर्थियन एंड कुषाण। जो कुषाण थे दे पैट्रोनाइज बोथ द मथुरा आर्ट एंड द गांधार आर्ट। एंड सातवाहन जो थे वो साउथ में थे, तो 220 से
BC से 220 AD, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सातवाहन रूल कर रहे थे साउथ में। दे पैट्रोनाइज द अमरावती स्कूल, क्योंकि अमरावती स्कूल के एरिया आपने देखा वहीं पर था, तो सातवाहन रूलर ने पैट्रोनाइज किया अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को। एरिया ऑफ डेवलपमेंट आपने देख लिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है किसका, गांधार आर्ट का। एंड अगर मथुरा की बात करें, डेवलप्ड इन अराउंड मथुरा, सोंक एंड कंका लीतला। कंका लीतला जो है इज फेमस फॉर जैन स्कल्पचर, तो कंका लीतला इज फेमस फॉर जैना स्कल्पचर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अगर बात करें हम अमरावती की, दे वर डेवलप्ड इन द कृष्णा गोदावरी लोअर बेसिन, तो आपको मैंने दिखाया है बेसिकली अराउंड अमरावती एंड नागार्जुना कोंडा। फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर की बात करें तो तीनों में क्या फीचर्स थे बुद्धा स्कल्पचर के। नाउ इन द गांधार आर्ट ऑफ कल्चर, Buddha is shown in the spiritual state with wavy hairs. He wears fewer ornaments and seated in the yogi position. The eyes are half closed as in the meditation. Protuberance is shown on the head signifying the omniscience of Buddha. तो कुछ इस तरह से ये प्रोट्यूबरेंस होता है, ठीक है। बुद्धा जी की आंखें थोड़ी सी बंद है, यानी मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, तो इसको ज़्यादा आप देखिएगा, सीटेड पोजीशन पे हैं, ये प्रोट्यूबरेंस है, और ये आंखें हाफ क्लोज्ड की हैं, वेवी हेयर्स हैं इनके पास, ठीक है। तो दिस इज द गांधार आर्ट। अगर आप बात करें मथुरा आर्ट की, बुद्धा इज शोन इन अ वेरी डिलाइटेड मूड, स्माइलिंग फेस के साथ हैं, ठीक है। एंड देयर बॉडी सिंबलाइज मैस्कुलिनिटी, तो जिम किया उन्होंने, ठीक है। टाइट ड्रेस पहन रहे हैं, जैसे कि जिम वाले आज के लोग पहनते हैं, खूब टाइट पहन के कपड़े जाते हैं, ठीक है। द फेस एंड हेड आर शेवन। बुद्धा इज सीटेड इन द पद्मासना, तो पद्मासना में बैठे हुए हैं विद डिफरेंट मुद्राज एंड हिज फेस रिफ्लेक्ट्स ग्रेस। अ सिमिलर प्रोट्यूबरेंस इज शोन ऑन द हेड, तो वही सेम चीज जो वहां पर थी वही यहाँ पर भी है, लेकिन जो प्रोट्यूबरेंस मथुरा आर्ट में है वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। एंड बुद्धा इज सराउंडेड बाई दो बोधिसत्वा से वो सराउंड थे, एक पद्म पानी थे जो कि होल्डिंग लोटस एंड वज्रपानी होल्डिंग थंडर बोर्ड। दिस इज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये आप देख सकते हैं मस्कुलिनिटी, यहाँ पे कट्स वर्ड्स निकले बुद्धा जी के, स्माइलिंग फेस के साथ बैठे हैं, डिलाइटेड मूड में हैं, और डिफरेंट मुद्राज में रहते थे, ठीक है। डिफरेंट मुद्राज होती है, अभय मुद्रा होती है, डिफरेंट टाइप्स की मुद्राज होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मथुरा आर्ट। अगर हम बात करें अमरावती आर्ट की, तो अमरावती आर्ट में बुद्धा को कहीं पर ऐसे इंडिविजुअल फीचर्स के रूप में नहीं दिखाया गया, बेसिकली वहां पर नरेटिव आर्ट दिखाया गया, जातका स्टोरी टाइप में। तो बुद्धा का एकदम फेस ऐसे इंडिविजुअल फीचर्स ना दिखा के पूरी टेल दिखाई गई जातका स्टोरीज की, ठीक है। सिंस द स्कल्पचर्स आर जनरली पार्ट ऑफ नरेटिव आर्ट, देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा। द स्कल्पचर जनरली डिपिक्ट्स द लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड जातका टेल्स, जाहिर सी बात है, ठीक है। और प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा कैसी थी उन सब के बारे में जातका टेल्स है, उनको उन्होंने ज्यादा शो किया है, ठीक है। नोट कीजिएगा कि स्कल्पचर ऑफ दिस स्कूल मेड एक्सेसिव यूज ऑफ त्रिभागा पॉस्चर, तो त्रिभागा पॉस्चर का यूज बहुत किया, जहां पर बॉडी जो थी बेंड होती थी तीन जगह से, ठीक है। और इस स्कूल में उन्होंने बुद्धा को बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म में दिखाया है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देखिए, ठीक है। तो ये है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। दिस इज ऑल अबाउट 3 स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये इतना ही पढ़ना है गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न पीरियड। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और रिकमेंड कीजिए दूसरों को। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, किसी को अगर फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर पहुंचाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर मैं क्विज कर रहा हूँ, 3 से 5 क्वेश्चन रोज करंट अफेयर्स के हम पुट करते हैं वहाँ पर, आप उनको लगाइए और चैंपियन हो जाइए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।